माननीय मंत्री जी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधानों को निरस्त करने के फैसले के केंद्र के 2019 के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना निर्णय दे दिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि इतने साल बाद भी इसकी वैधता पर बहस प्रासंगिक नहीं है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। सीजीआई ने कहा कि जम्मू कश्मीर का संविधान राज्य के लिए किसी संप्रभुता की बात नहीं करता और सीजीआई भी ये फैसला पढ़ ही रहे हैं। तमाम जो बातें लगातार सामने निकल कर आ रही हैं वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। सीजीआई ने ये कहा है अब तक कि हमने माना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। साफ तौर पर जो बड़ी बातें अब तक जो फैसला पढ़ा गया है उसमें निकल कर आई कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और साफ तौर पर हमने ये माना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। साथ ही जम्मू कश्मीर का संविधान राज्य के लिए किसी संप्रभुता की बात नहीं करता। जो सीजीआई फैसला पढ़ रहे हैं उनकी प्रमुख बातें ये हैं। तो अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने ये कहा है। Years, the entire constitution was being made applicable. The continuous exercise of power under Article 370, Clause 1 by the President indicates that the gradual process of constitutional integration was ongoing. The declaration issued by the President in exercise of the power under Clause 3 of Article 370 is a culmination of the process of integration. Thus, we do not find that the President's exercise of power under Clause 3 of Article 370 was mala fide. Having concluded that the power under Article 370, Clause 3 subsisted even after the dissolution of the Constituent Assembly, we have held that the exercise of power by the President to issue CO 273 is a valid exercise of constitutional power. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that the power under Article 371D cannot be issued to apply all the provisions of the Constitution to the state of Jammu and Kashmir. We have held that all provisions of the Constitution can be applied to Jammu and Kashmir through the exercise of power under Article 371D. The power under Article 371D can be used to apply one provision, more than one provision, an entire part of the Constitution, or all the provisions of the Constitution, that is the entire Constitution. The provision does not make a distinction between one or all provisions of the Constitution. Non-application of mine cannot be claimed merely because CO 272 applies all provisions of the Constitution to Jammu and Kashmir in one go. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that the President could not have secured the concurrence of the Union Government under the second proviso to Article 371D. We hold that the President seeking the concurrence of the Union Government instead of the government of the state to issue CO 272 is not invalid because, first, the effect of applying all the provisions of the Constitution to the state of Jammu and Kashmir through the exercise of power under Article 371D is the same as an exercise of power under Article 370, Clause 3, notifying that Article 370 shall cease to exist. That is, all provisions of the Constitution of India will apply to the state of Jammu and Kashmir, except for the fact that the former can be reversed while the latter, namely under Clause 3, cannot. Second, consultation and collaboration between both the units will only be necessary where the application of the provisions of the Indian Constitution to the state would require amendments to the state constitution, because the purpose of the requirements of consultation and collaboration is for the smooth functioning of governance in the state and to ensure that the provisions of the Constitution of Jammu and Kashmir are not inconsistent with the provisions of the Constitution of India. Third, since the effect of applying all the provisions of the Constitution of Jammu and Kashmir, since the effect of applying all the provisions of the Constitution to Jammu and Kashmir through the exercise of the power under Article 371D is the same as issuing a notification under Article 370, Clause 3, which the President has the power to unilaterally issue, the principle of consultation and collaboration are not required to be followed. Fourth, the exercise of power is mala fide only if power was exercised with an intent to deceive. Deception can only be proved
if the power which is otherwise unavailable to the authority or body is exercised, or if the power that is available is improperly exercised. Since the concurrence of the state government was not required for the exercise of power under Article 370(1)(d) to apply all provisions of the Constitution to the state, the President securing the concurrence of the Union of India on behalf of the state government is not mala fide. The next issue is the challenge to CO 272 on the ground that it is ultra vires Article 370(1)(d) because it modifies Article 370. We have held that the modification by CO 272 to Article 367 as it applies to Jammu and Kashmir had the effect of amending Article 370 and is thus ultra vires Article 370(1)(d). We have reached this conclusion for the following reasons. First, recourse must be had to the procedure contemplated by Article 370, Clause 3, if Article 370 is to cease to operate or is to be amended or modified in its application to the state of Jammu and Kashmir. No other procedure may be utilized to amend Article 370. Second, the rule of interpretation that a power under a statute must be exercised in accordance with the provisions of that statute and in no other manner is undoubtedly applicable to the Constitution. Third, from precedent, including Shankari Prasad Singh, Sajjan Singh, Quixote Holohan, and Rajendra Shah, it emerges that the following aspects are of significance when assessing whether a change has been made to a provision of the Constitution. 1. A change may be either in terms of or in its effect. 2. A change can be said to have been made even if the language of the concerned provision is not directly amended by adding, subtracting, or modifying the language. This is a change in effect. And 3. If the effect of an amendment is to change a provision, such effect must be significant or appreciable. And 4. The substance of a change is more important than its form. Second, an assessment of whether a constitutional order amounts to a modification and consequently whether the procedure under Article 370, Clause 1 or under Article 370, Clause 3 ought to have been followed depends on this standard. Third, the effect of a provision of law is as important as its form. While the change sought to be made by paragraph 2 of CO 272 may appear to be a modification or amendment of Article 367 at first blush, its effect is to amend Article 370 itself. CO 272 changes the language to the proviso to Article 370, Clause 3 in two ways. First, it changes the language to the proviso to Article 370, Clause 3 in two ways. First, it changes the recommending body from the Constituent Assembly to the Legislative Assembly. And second, it makes a new arrangement at variance with that specific Constituent Assembly. Both these changes are not insignificant because they modify the essential character of the proviso by substituting a particular type or kind of body with another type or kind entirely. Fourth, while the interpretation clause, namely Article 367, can be used to define or give meaning to particular terms, it cannot be deployed to amend a provision by bypassing the specific procedure laid down for its amendment. This would defeat the purpose of having a procedure for making an amendment to the Constitution of India. Fifth, the consequence of permitting amendments through the circuitous manner would be disastrous. Many provisions of the Constitution would be susceptible to amendments which evade the procedure stipulated by Article 368 or other provisions. Sixth, the previous constitutional orders which modified Article 370 through Article 367 were clarificatory and consequential. They did not have the effect of amending Article 370. We have therefore held as ultra vires the amendments which were made to Article 370, Clause 3 by taking recourse to Article 367. G, the status of the Constitution of Jammu and Kashmir. The gaps left by the non-application of some parts of the Constitution of India were filled by the Constitution of the state. After the abrogation of Article 370, as it stood before the issuance of CO 272 and CO 273, and the application of the entirety of the Constitution of India to the state, the Constitution of the state does not fulfill any purpose or serve any function. Hence, the implicit but necessary consequence of the application of the Constitution of India in its entirety to the state of Jammu and Kashmir
is that the constitution of the state is inoperative. On the validity of Parliament's exercise of power under the first proviso to Article 3, this is what we have said. A five-judge bench of this court in Babulal Parate held that the views expressed by the legislature of the state under the proviso to Article 3 are not binding on Parliament. If the views of the state legislature were binding on Parliament, which is not the case, there would be scope for debate on whether Parliament, in exercise of its powers under Article 356(1)(b, could have substituted its views for the views of the Legislative Assembly of the state. However, the views of the legislature of the state are not binding on Parliament in terms of the first proviso to Article 3. The views of the legislature of the state under the first proviso to Article 3 are recommendatory to begin with. Thus, Parliament's exercise of power under the first proviso to Article 3 is valid and not mala fide. The next issue is on the validity of the suspension of the second proviso to Article 3 as applicable to Jammu and Kashmir. When the reorganization bill was introduced, that is on 5 August 2019, the second proviso to Article 3 as it applied to the state of Jammu and Kashmir ceased to exist because of CO 272. Thus, the issue of whether the second proviso to Article 3 could have been suspended in exercise of the power under Article 356(1)(c) does not survive. The next issue is the validity of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. The Solicitor General, appearing for the Union of India, submitted that statehood will be restored to Jammu and Kashmir and that its status as a union territory is temporary. The Solicitor General submitted that the status of the Union Territory of Ladakh will not be affected by the restoration of statehood to Jammu and Kashmir. In view of the submission made by the Solicitor General that statehood would be restored of Jammu and Kashmir, we do not find it necessary to determine whether the reorganization of the state of Jammu and Kashmir into two union territories of Ladakh and Jammu and Kashmir is permissible under Article 3. The status of Ladakh as a union territory is upheld because Article 3A, read with explanation 1, permits forming a union territory by separation of a territory from any state. This court is alive to the security concerns in the territory. Direct elections to the legislative assemblies, which is one of the paramount features of representative democracy in India, cannot be put on hold until statehood is restored. We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. Restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible. The question of whether Parliament can extinguish the character of statehood by converting a state into one or more union territories in exercise of power under Article 3 is left open. In an appropriate case, this court must construe the scope of powers under Article 3 in light of the necessary effect of converting a state into union territories, which is that autonomy would be diminished, the historical context for the creation of federating units, and its impact on the principles of federalism and representative democracy. In view of the above discussion, the following are the conclusions. A. The state of Jammu and Kashmir does not retain any element of sovereignty after the execution of the instrument of accession and the issuance of the proclamation dated 25 November 1949, by which the Constitution of India was adopted. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty, which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. Article 370 was a feature of asymmetric federalism and not sovereignty. B. The petitioners did not challenge the issuance of the proclamations under Section 92 of the Jammu and Kashmir Constitution and Article 356 of the Indian Constitution until the special status of Jammu and Kashmir was abrogated. The challenge to the proclamations does not merit adjudication because the principal challenge is to the actions which were taken after the proclamation was issued. C. The exercise of power by the President after the proclamation under Article 356 is issued is subject to judicial review. The exercise of power by the President must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. The person challenging the exercise of power must prima facie establish that it is a mala fide or extraneous exercise of power. Once a prima facie case is made,
the onus shifts to the Union to justify the exercise of such power. D. The power of Parliament under Article 356(1)(b) to exercise the powers of the legislature of the state cannot be restricted to lawmaking power, thereby excluding non-lawmaking power of the legislature of the state. Such an interpretation would amount to reading in a limitation into the provision contrary to the text of the article. E. It can be garnered from the historical context for the inclusion of Article 370 and the placement of Article 370 in Part 21 of the Constitution that it is a temporary provision. F. The power under Article 370, Clause 3 did not cease to exist upon the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. When the Constituent Assembly was dissolved, only the transitional power recognized in the proviso to Article 370, Clause 3, which empowered the Constituent Assembly to make its recommendations, ceased to exist. It did not affect the power held by the President under Article 370, Clause 3. G. Article 370 cannot be amended by exercise of power under Article 370(1)(d). Recourse must have been taken to the procedure contemplated by Article 370, Clause 3, if Article 370 is to cease to operate or is to be amended or modified in its application to the state of Jammu and Kashmir. Paragraph 2 of CO 272, by which Article 370 was amended through Article 367, is ultra vires Article 370, Clause 1, Clause D, because it modifies Article 370 in effect without following the procedure prescribed to modify Article 370. An interpretation clause cannot be used to bypass the procedure laid down for amendment. H. The exercise of power by the President under Article 370(1)(d) to issue CO 272 is not mala fide. The President, in exercise of power under Article 370, Clause 3, can unilaterally issue a notification that Article 370 ceases to exist. The President did not have to secure the concurrence of the government of the state or union government acting on behalf of the state government under the second proviso to Article 370(1)(d) while applying all the provisions of the Constitution to Jammu and Kashmir, because such an exercise of power has the same effect as an exercise of power under Clause 3 of Article 370, for which the concurrence or collaboration with the state government was not required. I. Paragraph 2 of CO 272 issued by the President in exercise of power under Article 370(1)(d), applying all the provisions of the Constitution of India to the state of Jammu and Kashmir is valid. Such an exercise of power is not mala fide, merely because all the provisions were applied together without following a piecemeal approach. J. The President had the power to issue a notification declaring that Article 370, Clause 3 ceases to operate without the recommendation of the Constituent Assembly. The continuous exercise of power under Article 370, Clause 1 by the President indicates that the gradual process of constitutional integration was ongoing. The declaration issued by the President under Article 370, Clause 3 is a culmination of the process of integration and as such is a valid exercise of power. Thus, CO 273 is valid. K. The Constitution of India is a complete code for constitutional governance. Following the application of the Constitution of India in its entirety to the state of Jammu and Kashmir by CO 273, the Constitution of the state of Jammu and Kashmir is inoperative and is declared to have become redundant. L. The views of the legislature of the state under the first proviso to Article 3 are recommendatory. Thus, Parliament's exercise of power under the first proviso to Article 3 under the proclamation was valid and not mala fide. M. The Solicitor General stated that the statehood of Jammu and Kashmir will be restored, except for the carving out of the Union Territory of Ladakh. In view of the statement, we do not find it necessary to determine whether the reorganization of the state of Jammu and Kashmir into two Union Territories of Ladakh and Jammu and Kashmir is permissible under Article 3. However, we uphold the validity of the decision to carve out the Union Territory of Ladakh in view of Article 3A, read with Explanation 1, which permits forming a Union Territory by separation of a territory from any state. N. We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. Restoration of statehood
shall take place at the earliest and as soon as possible. तो आप सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई का सुप्रीम फैसला साफ तौर पर अनुच्छेद 370 से जुड़ा हुआ, जिस पर उन्होंने ये कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला सही था, वो एक अस्थायी प्रावधान था और इतने सालों के बाद इस की वैधता पर बहस प्रासंगिक ही रही है। 5 अगस्त 2019 को लिया हुआ फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया। सीजीआई ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और क्योंकि एक अस्थायी प्रावधान है, इससे जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द बहाल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी निर्देश दिया गया है आर्टिकल 14 के तहत कि 30 सितंबर 2024 तक वहां पर चुनाव होने चाहिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं कि केंद्र का जो फैसला था 370 हटाने का, उस पर सवाल उठाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये एक अस्थायी प्रावधान था जो उस वक्त जो सर्कमस्टांसेस रहे थे उसके लिहाज से लिया गया। तो और 370 का जो ये फैसला लिया गया था केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को, उसे हटाने का फैसला सरकार का सही था। इस पर सीजीआई की भी मुहर है और 370 हटाने का जो फैसला है अनुच्छेद का, उसको अब प्रभावी बनाए रखा जाएगा और विलय के साथ ही जिस तरह से सीजीआई ने कहा कि जो अपनी आंतरिक संप्रभुता थी वो अब जम्मू कश्मीर के पास नहीं है और अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किया गया और इसीलिए जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल हो, इसीलिए वहां पर चुनावों के लिए भी आदेश दिया गया है। राष्ट्रपति के फैसले पर भी कोई सवाल उठाने की वजह नहीं दिखती। ये बड़ा फैसला है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक बात कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 370 अनुच्छेद हटाया गया, उस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरह से राज्य के दर्जे को बहाल किया जाएगा, उस लिहाज से चुनाव होने भी बेहद जरूरी है। केंद्र का जो फैसला 370 को हटाने का लिया गया था, जिस पर लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुप्रीम फैसले में कहा कि ये संवैधानिक दायरे के अंतर्गत किया गया है, क्योंकि एक अस्थायी प्रावधान था। और इस अस्थायी प्रावधान को क्यों किया गया, इसकी तमाम जो और बड़ी बातें हैं वो जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी के पास। विकास, आज का बड़ा दिन, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला कि जो अनुच्छेद 370 को हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, वो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप लिया गया फैसला था केंद्र सरकार का। आंचल, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल यही कहा है कि जो फैसला लिया गया था और जो पहले अध्यादेश और फिर उसके बाद अधिनियम लाया गया था संसद में, इनमें किसी भी तरह की कोई संवैधानिक कमी नहीं है, कोई इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल पैदा नहीं होता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने जो ये कही, और इस पे एकदम स्पष्ट हो गया कोर्ट का मत, कि कोर्ट ने कहा कि 370 को लेकर जो एक बड़ी बहस थी कि क्या ये अस्थायी प्रावधान है या स्थायी, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एक टेम्परेरी प्रोविजन था, अस्थायी प्रावधान था। उस वक्त चलिए आइए सुनते हैं कि वकील क्या कह रहे हैं। पार्टीज को जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपने अपनी आर्गुमेंट को बताने की, और उसको सुनने के बाद आज ये जो है डिसीजन आया है। और जैसे कि मिस्टर कपिल सिब्बल जो मेरी तरह एक सीनियर एडवोकेट हैं, जो मैं आज सुप्रीम कोर्ट बार का अध्यक्ष हूँ, वो पहले 2002 में अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले, ऑफिशियली जजमेंट आने से पहले, उन्होंने ये मान लिया था कि वो केस हार गए हैं। तो क्योंकि हम वकील जो होते हैं, जो सीजन्ड एडवोकेट होते हैं, उनको पता होता है कि इस केस में क्या होना है, परंतु कई बार हम जो अपने क्लाइंट को राजी करने के लिए, कई बार अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, या हमारे जो फॉरेन में जो आका होते हैं उनको प्लीज़ करने के लिए, उनका कहना मानने के लिए इस तरीके की फ्रिवलेस जो है पिटीशन डालते हैं। काउंसिल के वरिष्ठ वकील हैं, उनका कहना है ये जो फैसला आया है इस पर साफ तौर पर संज्ञान लिया जा रहा है और ये जो फैसला है ये अपने आप में सुप्रीम है। विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, बार बार कोर्ट का ये कहना, सुप्रीम कोर्ट का, कि
राज्य का दर्जा जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में बहाल किया जाए और आर्टिकल 14 के तहत वहां पर चुनाव 30 सितंबर 2024 तक करवाए जाएं। साफ तौर पर इस बात को अंकित परिलक्षित करता है कि जिस 370 को हटाने के लिए याचिकाएं दायर की गई थी उनका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आंचल देखिए, 370 की पहले जो वैधता का जो मसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बहुत अहम बातें कही हैं। पहला ये कहा है कि ये एक अस्थायी प्रावधान था, टेम्परेरी प्रोविजन था, क्योंकि उस वक्त तक ये तय नहीं हुआ था कि जम्मू कश्मीर का जो कौन से ऐसे मसले हैं जिनको संसद देखेगी और कौन से ऐसे हैं जिनको विधानसभा देखेगी। लेकिन जब संविधान सभा जो जम्मू कश्मीर की थी, जब 1957 में उसका कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद ये टेम्परेरी प्रोविजन की जरूरत नहीं है। एक तरीके से अगर आप इसको तथ्य के तौर पर देखें कि सारा जो उसका टेम्परेरी प्रोविजन जो दिया गया था वो इसीलिए दिया गया था कि कैसा संविधान होगा जम्मू कश्मीर का, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे। दूसरी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ऐसा पहली बार नहीं है। जो चुनौती दी गई है राष्ट्रपति के अध्यादेश को या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, संविधान आदेश को, वो ऐसा नहीं है कि 70 साल बाद अचानक से राष्ट्रपति ने ऐसा कोई आदेश दे दिया। अगर आप देखें तो लगातार जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के साथ ही, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने के साथ ही, उसके तुरंत बाद से ही इस तरह के ऑर्डर 370(1) में और 370(3) में इस तरह के ऑर्डर्स बार बार आते रहे हैं। तो ये कहना कि अचानक से भारतीय संविधान पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पर लागू कर दिया गया, गलत है। ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन लंबे समय से चल रहा था। आप कह सकते हैं कि 19 में वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया और उस स्पेशल प्रोविजन की और टेम्परेरी प्रोविजन की जरूरत नहीं रही। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर ये कही है कि ये जो लगातार बहस की जा रही है कि क्या राष्ट्रपति को इस तरह के अध्यादेश लाने की शक्ति है जम्मू कश्मीर के संबंध में, ये स्पष्ट है कि बिल्कुल ला सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर का संविधान और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं पर भी ये नहीं कहते कि जम्मू कश्मीर की अपनी कोई संप्रभुता है। जैसे ही उसने भारत के साथ विलय के पर हस्ताक्षर किए, अपनी संप्रभुता जम्मू कश्मीर की कोई नहीं रही। जबकि भारत का जो संविधान है वो प्रियम्बल में साफ साफ कहता है कि भारत एक संप्रभु देश है और सभी राज्यों पर ये भारत जो संप्रभुता है संघ की वो लागू होती है। तो जम्मू कश्मीर उसका वाद नहीं है, उसकी अपनी कोई अलग से सोवरेनिटी नहीं है। मान सकते हैं कि इस फैसले के बाद अब एक बहुत बड़ी जीत मनाने का दिन है। साथ ही साथ इस बहस पर अब विराम लगता हुआ नजर आएगा। जो लगातार बातें, आवाजें उठती थी कि भाई अनुच्छेद 370 को असंवैधानिक तरीके से वहां पर हटाया गया है। देखिए आंचल, इसमें कोर्ट में तो जो लीगल एक तरीके की बैटल थी वो चल रही थी। स्थिति तो वहां पर एकदम स्पष्ट हो ही गई थी। 2019 के आदेश के बाद जो स्थिति है उसके अनुरूप वहां पर काम किए जा रहे हैं। हालांकि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एक बहस जरूर चल रही थी जो हमने संसद में भी देखी। खासतौर से अभी जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ सांसदों ने कहा कि मामला विचाराधीन था सुप्रीम कोर्ट में और ये इस तरह के निर्णय असंवैधानिक हैं। तो उसका जो पॉलिटिकल जवाब था वो तो सरकार ने दिया संसद में, लेकिन कोर्ट का जो फैसला आया है उससे खासतौर से उन पार्टियों को बड़ा झटका लगेगा जो बार बार इस एक्शन पर, राष्ट्रपति के अध्यादेश पर और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून पर बार बार सवाल उठा रहे थे। इसकी अब समीक्षा संविधान पीठ 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। इसके बाद राजनीतिक बहस पर एक विराम लग जाना चाहिए। लगेगा या नहीं लगेगा वो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जो आपत्तियां उठाई गई थी उनका एक एक करके क्रमवार जवाब दिया है। हालांकि वो चीजों को आंचल कोर्ट ने कहा कि मसलन पुनर्गठन जो का जो मामला था, विधेयक था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसकी समीक्षा जरूरी नहीं समझते। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित करे कि वहां की जो विधानसभा है उसका चुनाव सितंबर 2024 तक हो। यानी कि जो विधानसभा में नुमाइंदगी है, राज्य के लोग जो भेजते हैं अपने उम्मीदवारों को, वो एक बहाल होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। इससे पहले केंद्र भी इस तरह का विधेयक, जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने फैसले लिए जा चुके हैं उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है। अब आज के बाद ये जो बार बार आर्टिकल 35A के बारे में जो दलीलें दी जा रही थी, आर्टिकल 370 के पक्ष में दलीलें दी जा रही थी, मुझे लगता है उन सबको जवाब मिल गया है और आशा करता हूं कि आज के बाद अब लोग सब शांत रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति का अधिकार का भी जिक्र किया। वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय को सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से जो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है 370 आर्टिकल को हटाने के लेकर,
उस पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब इस बहस पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आएगा उन लोगों द्वारा जो लगातार आर्टिकल 35A के तहत लगातार ये याचिका दाखिल करते थे कि जो 370 है अनुच्छेद उसे हटाना जो था वो ठीक नहीं था। साफ तौर पर जिस तरह से फैसला पढ़ते हुए CJI ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं की उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति उद्घोषणा के तहत किसी राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसको लेकर भी सवाल उठाए गए थे। सवाल लगातार जिस तरह से याचिकाओं में उठाए गए कि कैसे एक राज्य की संप्रभुता को खत्म किया गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, जिसका जिक्र विकास सारथी भी कर रहे थे, कि 370 लगाना खासतौर पर उस वक्त जम्मू कश्मीर के लिए एक अस्थायी प्रावधान था और इसीलिए अब इतने सालों के बाद इस बहस की कोई वैधता है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातों में ये भी यहाँ पर रखते हुए कहा है कि अनुच्छेद 370 पर जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था, जो 5 जजों की पीठ है, कि इसमें कहीं ना कहीं शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है, उसको भी सिरे से खारिज किया है CJI ने। इसीलिए अनुच्छेद 370 पर यह सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है और ख़ास तौर पर जिस ऑटोनॉमस कैरेक्टर की बात लगातार की जा रही थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये जो अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया गया था ये बिल्कुल ठीक था। और CJI ने ये भी कहा कि ये मानना प्रासंगिक नहीं है कि इस वक्त कि जिस तरह से इस 370 को हटाने की जिस वैधता को लेकर बहस की जा रही है, यहाँ पर एक चीज़ समझने के बारे में लगातार जिस तरह से विकास भी बता रहे थे कि दो अहम बातें जब इस फैसले को पढ़ा गया, उसमें पहली बात ये थी कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 370 को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि वो अस्थायी प्रावधान है, उस वक्त के हालातों को देखते हुए एक टेम्पररी यानी अस्थायी प्रावधान था जिस वक्त जो हालात उस राज्य में उस वक्त चल रहे थे। इसीलिए साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में ये बातें कही हैं। एक बार वापस लिए चलते हैं आपको हम विकास सारथी की तरफ। अब विकास, जिस तरह से जो तमाम वरिष्ठ वकीलों की हम बात सुन रहे हैं उनका भी ये मानना है कि अब इस बहस पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आएगा, जब लगातार अनुच्छेद 370 के बारे में ये बात कही जा रही थी कि ये जो हटाया गया है ये ठीक नहीं। और सबसे अहम इसमें यह भी है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर भी याचिकाकर्ताओं ने जिस तरह की दलीलें दी उसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। आंचल, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल, जी, सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बहुत मुख्य बातें कही। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर की अपनी कोई सोवरेनिटी अलग से नहीं है, कोई संप्रभुता राज्य की अपनी नहीं है। दूसरी बात कोर्ट ने यह कहा कि जो हमारा प्रीएम्बल है, भारत का प्रीएम्बल है, वो साफ तौर पर कहता है कि जो संप्रभुता है वो देश के हर हिस्से पर लागू होगी। इसीलिए सबसे पहले सोवरेनिटी के मसले पर कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया। दूसरी बात कोर्ट ने कहा कि खुद जम्मू कश्मीर का जो संविधान था पुराना, उसमें भी कहीं संप्रभुता की बात नहीं आती थी। जो उसके अलावा महत्वपूर्ण बात है वो ये है, कोर्ट ने ये ठहराया है कि आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन है, एक अस्थायी प्रावधान है और इसको इसलिए लाया गया था कि जो आप कह सकते हैं एक संक्रमण काल था जिसमें राज्य का विलय भारत के साथ हो रहा था, उस वक्त क्या प्रावधान डाले जाएंगे वहां के संविधान में, या जो शर्तें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के समय रखी गई थी उनसे कैसे डील करना है, उनके मद्देनजर इस टेम्परेरी प्रोविजन को रखा गया था। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का कार्यकाल खत्म हुआ, केंद्र की ये दलील थी कि ये टेम्परेरी प्रोविजन गैर जरूरी हो गया था। इसके अलावा कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि याचिकाकर्ता लगातार ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर निकाला है 272 और 273, इसकी संवैधानिक वैधता को जब चुनौती दी गई तो कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है जब आर्टिकल 370 के सब क्लॉज 1 और 3 के तहत इस तरह के आदेश राष्ट्रपति ने जारी किए हों। 70 साल से लगातार इन्हीं शक्तियों के अधीन तरह तरह के संवैधानिक आदेश जारी किए गए हैं प्रेसिडेंट की ओर से। तो ये कहना कि अचानक 70 साल बाद एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, कोई नई शक्ति राष्ट्रपति एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये गलत है। हमने पहले भी इस तरह के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स को देखा है जो समय समय पर जारी किए गए, और ये फैक्ट भी है। आंचल, अगर आप देखें तो जब शुरुआत में वहां पर जो पूरी टर्मिनोलॉजी थी जम्मू कश्मीर की वो एकदम अलग थी। वहां जब चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, राज्यपाल को सदर रियासत कहा जाता था, ये सारी चीजें मॉडिफाई की गई इन्हीं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए, और उस वक्त किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ, इसकी वैधानिकता को चुनौती नहीं दी गई। लेकिन आज कोर्ट ने
पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि 2019 को जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया था और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, उसको लेकर उसको किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रपति ने अपने संवैधानिक शक्तियों का 370 में ही दिए गए प्रावधानों का 370 क्लॉज 3 का इस्तेमाल करते हुए ये निर्णय लिया के साथ के जी, अब खास तौर पर जिस तरह से अनुच्छेद 370 को हटाने का जो फैसला है उस पर आज सुप्रीम सुनवाई हुई है और साफ तौर पर जिस तरह से कोर्ट ने ये कहा कि जिस तरह से अनुच्छेद 370 को हटाया गया ये बिल्कुल वैध था, कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप इसे आज? जो भी हुआ है वो संवैधानिकता के हिसाब से हुआ है। 370 का जो प्रोविजन था वो ट्रांजिटरी प्रोविजन था, परमानेंट प्रोविजन नहीं था और ये बिल्कुल संविधान के हिसाब से ही सारा फैसला आया है और ये अच्छा कदम होगा नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, कश्मीर के इंटीग्रेशन के लिए देश में, और वहाँ कानून व्यवस्था होगी। ये भी बताया गया कोर्ट को कि स्टेटहुड उनको दे दिया जाएगा। इलेक्शंस की भी बात हुई है, तो पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपने फुल फॉर्म में वहाँ होगा और इंटीग्रेशन से सबका मनोबल बढ़ेगा, वहाँ के लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा और बाकी देश का भी मनोबल बढ़ेगा और ये अच्छा फैसला है, देश हित में फैसला है। राय साहब, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि जो ये फैसला लिया गया है उसमें तमाम याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि ये संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं हुआ। क्या आपको लगता है जिस तरह से जिस हम नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, इस पूरे कथन को और बल मिलेगा, खास तौर पर जब वहां चुनाव कराए जाएंगे? आर्टिकल 370 कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी हुआ है संविधान के अंतर्गत हुआ है और कानून के अंतर्गत हुआ है। तो ये दलील कि ये कानून का उल्लंघन करके इसे किया गया, उस दलील को खारिज कर दिया गया, तो इससे बल मिलेगा, रूल ऑफ लॉ को बल मिलेगा। विकास सारथी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, किस यहाँ पर लगातार राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर भी याचिकाकर्ताओं ने कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन उस पर भी कोर्ट ने साफ तौर पर संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां जिस तरह से उनका इस्तेमाल किया गया वो भी संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप था। बिल्कुल विकास। बिल्कुल आंचल, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि ऐसा पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति ने इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अध्यादेश जारी किए। हम देख रहे हैं लगातार जैसे ही जम्मू कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था उसके कुछ ही समय बाद से इस तरह के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किए जाते रहे समय समय पर। तो ये कहना कि अचानक से कोई नई व्यवस्था आ गई, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। दूसरी बात, कोर्ट ने कुछ बातों की ओर ये भी इशारा किया कि जो वहाँ के प्रैक्टिकल हालात हैं, जैसे कोर्ट ने ये बात ज़रूर कही कि वहाँ पर स्टेटहुड के मामले पर केंद्र को कोई फैसला लेना चाहिए, लेकिन ये बात भी जोड़ी इसमें कि जो हालात रहे हैं वैली के, उससे हम भी वाकिफ़ हैं। इसीलिए कोर्ट का ये एक एडवाइजरी नेचर का आप ये कह सकते हैं जो बात कोर्ट ने यहाँ पर कही है कि 2024 तक वहाँ पर विधानसभा चुनाव कराए जाएं। और जो टेम्परेरी प्रोविज़न की जब बात की गई है तब भी कोर्ट ने इस बात का जो एक प्रैक्टिकल इशू था उसको ध्यान में रखते हुए बात कही कि जब ये पूरी इंटीग्रेशन चल रहा था जम्मू कश्मीर का भारत के साथ, उस वक्त तो हम मान सकते हैं विकास की लगातार जो ये बात इसीलिए टेम्परेरी प्रोविजन का इस्तेमाल उस जी, ये लगातार जो बात सामने की अनुच्छेद 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को जो बाकी भारत से जोड़ने की पूरी प्रक्रिया है उसको बल मिला है, जिस नए कश्मीर की हम बात करते हैं लगातार। बिल्कुल आंचल, अगर आप पुरानी व्यवस्था को देखें, 2019 से पहले की व्यवस्था को देखें तो क्या होता था कि जो 3 विषय थे यानी डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स, इसको छोड़ के जो भी कानून थे वो वहाँ की असेंबली बनाती थी और जो भी ऐसे कोई कानून होते थे जो इन 3 विषयों के अलग हैं और भारत की संसद केंद्र में संसद उसको बना रही है, तो उसको लागू करने के लिए बाकायदा पहले या तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला जाता था और उस पर फिर वहाँ की विधानसभा से कंकरेंस लिया जाता था कि वहाँ की विधानसभा भी उसको पारित करती थी। तो एक दोहरी व्यवस्था चल रही थी। कोर्ट ने ये कहा कि जो ये जो प्रोविज़न है, जो बाकी राज्यों की स्थिति है वही जम्मू कश्मीर की स्थिति है, ये एक इंटीग्रल पार्ट है, इसीलिए ये सारा विवाद
अब एक तरीके की एकेडमिक बहस है, लेकिन जहाँ तक हम प्रोविजंस की बात करें 370 के, वो साफ साफ ये दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर की अपनी कोई संप्रभुता नहीं है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर का जो पुराना संविधान था वो भी इसकी बात नहीं करता था। इंटीग्रेशन स्वीकार किया गया था जम्मू कश्मीर की तरफ से खुद, और जो ये प्रोविज़न डाला गया था 370 का, एक टेम्परेरी प्रोविज़न था जो कि उस वक्त की जो परिस्थिति थी, जो एक्सेशन चल रहा था पूरा, उस वक्त क्या क्या चीज़ें किस किस तरह की चीज़ों को प्रावधान में शामिल किया जाएगा, इसको तय करने के लिए था। और वो उसकी संविधान सभा ने जब ये सारी बातें तय कर दी 1957 में वो भंग हो गई, तो फिर इन सारे प्रोविजंस का मतलब कुछ नहीं रह जाता है। अब जो विषय बचते हैं यहाँ पर आंचल, वो ये कि जैसा आप 2019 का जो चाहे आप जो नोटिफिकेशन था, राष्ट्रपति का आदेश था, या उसके बाद कानून लाया गया, उसकी भाषा आप देखें उसमें साफ साफ लिखा गया है। और 370 के ही क्लॉज 3 से ये बात साफ होती है कि जितने भी कानून जो लागू होंगे संसद द्वारा, वो बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर पर भी उसी तरह से लागू होंगे। तो वहाँ की विधानसभा की जो एक अलग से शक्ति थी, सिर्फ 3 विषयों को छोड़कर वो बाकी विषयों पर खुद कानून बनाते थे, वो ख़त्म कर दी गई इसी 2019 के आदेश के बाद से। अब वही व्यवस्था भविष्य में लागू रहेगी। आंचल, इसमें आप याद करें कि जो बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लाए गए पिछले कुछ दशकों में, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल हो, ये सारी चीज़ें अपने आप लागू नहीं होती थी जम्मू कश्मीर पर। इसके लिए बाकायदा वहाँ विधानसभा एक लगभग समान प्रावधानों वाला सेम लैंग्वेज का एक बिल लाती थी, वहाँ की विधानसभा चर्चा करती थी, फिर पारित करके जो इस तरह के केंद्र के जो या संसद द्वारा पारित जो कानून है उनको लागू किया जाता था। तो ये दोहरी व्यवस्था जो थी उसको 2019 में समाप्त कर दिया गया था, और इसको कोर्ट ने आज मोहर लगा दी है। एक और सबसे जो पॉजिटिव बात निकलकर सामने आई विकास आम जन के हिसाब से, वो ये है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल हो और वहाँ पर चुनाव कराया जाए। इसको लेकर कोर्ट ने किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं, और इस पर किस तरह से अब कानूनी तौर पर आगे, या फिर हम कहें संवैधानिक तौर पर आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, इस पे सरकार का जो नज़रिया है वो संसद के अंदर और बाहर भी, चाहे वो कोर्ट में हो, दोनों जगहों पर यह है कि सही समय आने पर फुल स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा। आप हाल ही में लाए गए जो विधेयक हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े, उनको आप देखें, उनमें विधानसभा बहाल कर दी गई है। हालांकि यूनियन टेरिटरी का दर्जा अब भी रखा गया है, लेकिन विधानसभा जम्मू कश्मीर को दे दी गई है। तो आने वाले समय में जब सरकार को, केंद्र को, संघ के भारत सरकार को ये लगेगा कि हालात अब बिल्कुल एक तरीके से सामान्य हो चुके हैं, हालांकि अभी भी जब कोर्ट को ये सारी बातें बताई गई तो उसमें आंकड़े रखे गए कि किस तरह से 2019 के फैसले के बाद से टेररिज्म की एक्टिविटी, पत्थरबाजी की घटनाएं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो था वो उसमें कितनी कमी आई है, उसमें कितनी गिरावट आई है। लेकिन ये जो मामला है आंचल, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के विवेक के और विचाराधीन मामला है कि कब वहाँ पर उसको फुल स्टेटहुड देना है। कोर्ट ने अपनी तरफ से ये ज़रूर कहा कि सितंबर 2024 तक ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वहाँ पर चुनाव हो। मुमकिन है उससे पहले ही चुनाव हो जाएं, क्योंकि जहाँ तक केंद्र का जो नज़रिया है, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली का दर्जा केंद्र पहले ही तय कर चुका है, तो वहाँ पे चुनाव ज़रूर हो जाएंगे। फुल स्टेटहुड का जो मसला है वो आप कहें कि पूरी तरह से केंद्र सरकार को तय करना है कि उचित समय केंद्र सरकार उसको क्या मानती है जब फुल स्टेटहुड, और साफ तौर पर यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया गया, वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। इसे अगर हम कानूनी भाषा में समझें तो ये क्या है? बिल्कुल, उस पहलू को भी चुनौती दी गई थी कि कैसे जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 जो संसद को ये शक्ति देता है कि वो किसी राज्य की सीमा को बढ़ा दे, नया राज्य बना दे, पुराने राज्य को हटा दे, ये सारे जो अधिकार हैं आर्टिकल 1 और 3 के तहत, वही अधिकार जम्मू कश्मीर पर भी लागू होते हैं। इसीलिए जब जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक को यूनियन टेरिटरी विद असेंबली और एक को यूनियन टेरिटरी विदाउट असेंबली घोषित किया गया है, तो ये भी मसला पूरी तरह से केंद्र सरकार और कहें कि संसद के अधिकारों के दायरे में आता है। इसमें किसी तरह की संवैधानिक त्रुटि नहीं है, और कोर्ट ने कहा कि इसलिए इसकी न्यायिक समीक्षा भी हम ज़रूरी नहीं समझते। ये पूरी तरह से स्थापित है कि कोई अलग से अधिकार नहीं चाहिए। आर्टिकल 1 और 3 में भारतीय संसद को पूरी तरह अधिकार है कि वो राज्य
राज्य की जो सीमा है उसमें किसी तरह का बदलाव कर सके। जिस वक्त ये निर्णय लिया गया वहाँ पर विधानसभा नहीं थी, तो जाहिर है उसमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो व्यू था वो वहाँ के गवर्नर का व्यू था और इसको लेकर बहस हुई। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जताई है कि इसमें जो संसद ने जो नया कानून बना करके ये दोनों स्टेट के 2 हिस्से किए, उसमें किसी तरह की कोई संवैधानिक त्रुटि नहीं है। तो ये मान लिया जाए कि जिस तरह से 23 इस तरह की याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें नागरिक समाज से जुड़े लोग थे, वकील थे, राजनेता थे, पत्रकार, कार्यकर्ता शामिल थे, जिनका ये कहना था कि भाई 370 को निरस्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के लिए इसे रद्द करने की मांग की गई थी। उस लिहाज से जब हम अलगाववादियों की सोच की बात करते हैं, लगातार ये कहा जाता है कि कभी कश्मीर अलग है भारत से, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम तरीके से ये फैसला रखना कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। बिल्कुल आंचल, जब 2019 में फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं आई, हालांकि उस वक्त कोविड के चलते कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर्म नहीं हो रही थी, इसीलिए इसकी सुनवाई में देरी ज़रूर हुई। लेकिन आप एक अहम बात ये देखें कि जब इसके नतीजे आए हैं इस पूरे फैसले के, जब वहाँ पर पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई, वहाँ पर आतंकी घटनाओं में कमी आई, भारी कमी आई, और इसके चलते अब 2 महत्वपूर्ण जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने सुनवाई के पहले दिन ही इस मामले से अपना नाम वापस ले लिया था। हालांकि जो बाकी याचिकाकर्ता थे, जिसमें कि कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने याचिकाएं दाखिल की थी, वो लोग इस पर कायम रहे कि वो इस याचिका पर आगे बहस करेंगे, कंटेस्ट करेंगे इस पूरे फैसले को। लेकिन 2 महत्वपूर्ण याचिकाकर्ताओं ने अपने इस वक्त करण सिंह अपना रिएक्शन दे रहे हैं, ये सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। कश्मीर को काट के 2 हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था, किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था। पहले कहते थे ये मुकुट है, ये भारतवर्ष का ये है, और मुकुट क्या रहा, फिर हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। तो वो जल्द से जल्द, मैं समझता हूँ, मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे दें। ये ज़रूरी नहीं कि पहले चुनाव हो फिर उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाए, बल्कि अगर चुनाव हो तो राज्य के लिए हो, यूनियन टेरिटरी के लिए क्यों हो। तो दूसरी बात ये बनती है कि भाई इन्होंने ये कहा, और फिर उन्होंने ये कहा कि चुनाव हो जाने चाहिए सितंबर 2004। वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी देर से चुनाव नहीं हुए हैं और कुछ से लगता था कि ये लोग कुछ इसको आगे चलाने की कोशिश की जा रही थी। तो ठीक है, अगले साल तक उन्होंने कार्य दे दिया, समय दे दिया है। तो ये मैं कहूँगा इसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया। एक बात मैं इस पर और कह दूँ, मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को ये निर्णय अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी उनसे राय है, उनके हमदर्द होने के नाते, क्योंकि मैं भी तो जम्मू कश्मीर का ही हूँ, हमारा सारा अगर राज्य उभरा तो जम्मू कश्मीर की वजह से उभरा, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि अब वो इसको स्वीकार कर लें। अब कोई विरोध करने का लाभ नहीं है, अब वो राजनीति के लिए तैयार हो जाए। जब चुनाव हो तो चुनाव डट के लड़े, तो अपनी शक्ति जो है वो चुनाव में लगाएं, बजाय इसके कि इसके विरोधात्मक कार्यक्रम करें। ये मेरी उनसे। पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर करण सिंह, साफ तौर पर उनका कहना है कि जो फैसला आया है वो इसे मुफीद मानते हैं। उनका कहना है कि भले ही चुनाव ना भी हो, लेकिन राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हो जम्मू कश्मीर में जिन्हें ये फैसला पसंद आए, लेकिन अब वक्त हो गया है, जम्मू कश्मीर का वक्त आ गया है। ये उस नए कश्मीर का वक्त है जिसमें उसे राज्य का दर्जा मिले। खास तौर पर जिस सामाजिक समरसता का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस एकता के सूत्र में पिरोने की बात लगातार कही जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि हमेशा से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग था और वो रहेगा। इस पर उन्होंने भी अपनी राय रखी और ये अपील की सरकार से कि जल्द से जल्द वहां पर चुनाव कराए जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खास जो मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो पर। पहला सवाल यही, जिस 370 को हटाने के लिए जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया, उसके खिलाफ 23 से ज़्यादा याचिकाएं जो हैं वो दायर की गई, लेकिन आज एक सिरे से सीजीआई का जवाब कि 370 हटाना संवैधानिक था, वैध था, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। इस पर क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल आपने सही कहा। एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए अवेटेड जजमेंट था, पहली बात। दूसरा, बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, दो राय नहीं है। देखिए, जो शुरुआत जब अपने जजमेंट की करी तो चीफ जस्टिस ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि कहीं पे भी 1947 से जब भारत में कश्मीर का विलय हुआ था तब से अभी तक सोवरेनिटी का जो पार्ट है वो सदैव उनके साथ कभी नहीं था। भारत का सोवरेन जो पावर थी वो भारत की होती थी, और कुछ एक पावर्स उस पर्टिकुलर प्रोविजन को, जिसको जो संविधान पीठ है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने आज बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था, और उस टेम्परेरी प्रोविजन को किसी भी तरीके से सरकार ने, जो पार्लियामेंट की जो पावर है वो गलत नहीं थी, और पार्लियामेंट ने अपनी उन पावर्स के तहत ही उसको उसमें जो ये जो ऑर्डर है इसको पास किया था कुछ वर्ष पहले, जो कि चैलेंज के लिए था। इसके अलावा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो बार बार सामने आ रही थी, जिसको बेसिस भी बनाया आज, और एक बहुत महत्वपूर्ण कि पिछले 70 साल में जो ये वेरियस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स, वेरियस गवर्नर के ऑर्डर्स जो हुए, नोटिफिकेशंस हुए, उन तमाम से जो विलय की प्रक्रिया है उसको और सुदृढ़ किया गया, और मजबूती से उस विलय को हम सबके समक्ष रखा गया, और 70 साल के इस पीरियड में कभी भी इस पर्टिकुलर चीज को चैलेंज नहीं किया गया। तो ये एक बेसिस है कि जिसको कहते हैं ना कि उसके लिए ये एक ग्राउंड बना, जिससे कि इंटीग्रेशन, जिसे हम बार बार शब्द कह रहे थे कि इट हैज बिकम ए ग्राउंड ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो इंटीग्रेशन का ग्राउंड था, और किस तरीके से कभी भी उसको चैलेंज नहीं किया गया। एक बात और बहुत ही रोचक समक्ष आई हम लोगों के, वो ये था कि जो आर्टिकल 3 को कहा जाता, आर्टिकल 3 में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे, जो बार बार बताता है कि किस प्रकार से प्रदेशों का संजय जी, आपको 2 मिनट रुकना चाहूंगी। हमारे पास लगातार प्रतिक्रिया आ रही है इस फैसले को लेकर, और भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए पहले वो सुनवाते हैं, फिर आपके पास वापस आऊंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना सही है। देखिए, ये खंडपीठ का निर्णय जो उच्चतम न्यायालय का है, ये संवैधानिक निर्णय है, और मैं समझता हूं कि 2019 के अगस्त माह में जो 370 धारा हटाने का निर्णय लिया गया था वो अपने आप में ऐतिहासिक था। देश के प्रधानमंत्री का वो सोच, देश की सरकार का वो सोच, और सदन के भीतर सभी का सोच, और उस निर्णय पर आज खंडपीठ ने अंतिम रूप से मोहर लगा दिया है। और मैं समझता हूं कि अपने आप में भारत के संविधान के तहत उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है वो ऐतिहासिक है, और अब किसी प्रकार का इस पर कोई सवाल जवाब का प्रश्न नहीं उठता। कुछ नेता, कुछ राजनीतिक नेता और कुछ सामाजिक नेता ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो अब इस फैसले के बाद उन सबको ये मान लेना चाहिए, और इस पर कोई भी जो विवाद की गुंजाइश है वो पूरी तरह खत्म हो जानी चाहिए। पूरी तौर से हमारे लिए उच्चतम न्यायालय अंतिम रूप से वो न्यायालय है जहां संविधान की रक्षा की जिम्मेवारी है, और मैं समझता हूं कि इस निर्णय के बाद देश के संविधान के रक्षक जो उच्चतम न्यायालय है उसने ये फैसला सुना दिया, और कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये सोच थी देश के प्रधानमंत्री की, देश की सरकार की, और देश के लोगों की, जिसे पूरा किया गया, उस पर अंतिम तौर पर उच्चतम न्यायालय ने मोहर लगा दिया। 5 अगस्त को जब ये फैसला आया था उसके बाद हम देखें एक लंबा अरसा बीत गया है, बदलाव की एक बयार जम्मू कश्मीर में दिखती है, और अब जम्मू कश्मीर को लेकर 2 महत्वपूर्ण विधेयक जो पिछले हफ्ते लोकसभा में पारित हुए थे, इस हफ्ते अब राज्यसभा में पारित होंगे, तो उससे आगे भी सरकार बढ़ रही है। देखिए, वहाँ विकास बिल्कुल चरम सीमा पर है, लोग खुश है, बाहर से आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी है, और विकास, और जितने कानून पिछले 70 साल से कश्मीर के लोगों को बाधित किया गया था, उनसे वंचित किया गया था, आज कश्मीर में वो तमाम कानून लागू करके वहाँ के उन गरीबों को, वहाँ के उन नौजवानों को, वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के वृद्धों को वो सब कुछ मिल रहा है जो 70-75 साल में वंचित थे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव प्रताप रूडी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराया, और उसके बाद उनका कहना है कि अब जो लोग भी थोड़ा बहुत उस पर बात अपनी कहते थे, सवाल उठाते थे, वो पूरी तरह से अब ये साफ हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने भी वैध ठहराया है सरकार के फैसले को, और
अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव दिखाई दे रहा है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। आइए सुनते हैं। दोनों पार्टीज को जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपनी अपनी आर्गुमेंट को बताने की, और उसको सुनने के बाद डिसीजन आया है अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, या हमारे जो फॉरेन में जो आका होते हैं उनको प्लीज करने के लिए, उनका कहना मानने के लिए। परंतु आज ये सारी चीज़ का फैसला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था। और इसी मसले पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता संजय जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, याचिकाकर्ताओं ने एक तर्क और भी दिया था। उन्होंने कहा था कि लोगों की इच्छा के खिलाफ ये एक राजनीतिक कृत्य किया गया, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज किया है। क्योंकि जिस विकास की बयार की हम बात कर रहे हैं, जो इस नए कश्मीर का हम जिक्र कर रहे हैं, जहाँ युवाओं की बात है, उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का जिक्र किया गया, ये उसकी साक्षात तस्वीर पेश करता है। देखिए, जब ये आर्गुमेंट चल रहा था कोर्ट में, तब भी ये बात उठी थी और उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंस दिखाई थी आर्गुमेंट्स में कि पिछले 4 वर्षों में जो प्रोग्रेस, जो तरक्की जेएनके में हुई है, जो पीस वहां मेंटेन हुआ है, कंपैरेटिवली अगर हम उसका अवलोकन करें दोनों समयों का, तो वो एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पक्ष दर्शाता है कि ये निर्णय होने के बाद वहां पे एक पॉजिटिव रिफॉर्म की तरफ हम लोग बढ़े हैं। तो नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत अहम बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने पुरजोर तरीके से जो हमारा एक स्तंभ है डेमोक्रेसी, जिसको हम कहते हैं द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी है और कहा कि रूल ऑफ लॉ से हम लोग गवर्न है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हम लोग, और इलेक्शंस का होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जोर डाला। और उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन को ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से आप अपनी वहां की जो व्यवस्थाओं को देखते हुए 2024 की सितंबर तक जो है वहां पे चुनाव का भी इंतजाम करें, जिससे कि लोकप्रिय सरकार, वहां के लोगों की जो भावनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई सरकार वहां पे आए। तो अपने आप पे एक बहुत ही सुदृढ़ जजमेंट है मेरे ख्याल से, और बार बार यही एक चीज को इंगित करता है कि जो पक्ष पहले जिन विषयों को लेके इस पर्टिकुलर पिटीशन को, जैसा कि आपने बताया कि 23 के तकरीबन पिटीशंस थी, मैं आप ज्यादा नंबर में पिटीशंस थी, और एक वक्त ऐसा आया कि ये कश्मीर की वो आवाम है, वो जनता है जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो स्थायित्व चाहती है, जिस नेशनल इंटीग्रेशन का जिक्र किया जा रहा है, जिसके लिए लगातार अभी सीजीआई ने ये कहा कि जल्द से जल्द वहाँ चुनाव होने चाहिए और साफ तौर पर जम्मू कश्मीर हमारा ही हिस्सा है। आप देख सकते हैं उस फैसले के बाद वहाँ की जो आवाम है इस फैसले का स्वागत करती हुई, ये फैसला कितना मुफीद है उनका मुस्तकबिल लिखने के लिए, आप ये समझिए। और ये इस बात की तस्दीक करता है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी पढ़ा है, सीजीआई द्वारा पढ़ा गया है, उसमें अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक तौर पर वैध है। ये उनके चेहरों की मुस्कान और उनका ये सेलिब्रेशन बताता है, क्योंकि किन्हीं वजहों से कई सालों तक जिन तमाम योजनाओं से जम्मू कश्मीर वंचित रहा, अब वक्त आ गया है और वो वक्त चल रहा है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर लगातार विकास की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। वहाँ का युवा, वहाँ की महिलाएं और ख़ासतौर पर वहाँ का जो यूथ है वो, तो जम्मू कश्मीर दूसरा राज्यों से अलग नहीं है। इसीलिए आप उस आवाम की आवाज़ सुन रहे हैं, उस आवाम की आवाज़ में वो खनक है जो साफ तौर पर इस बात को कहती है कि जो फैसला लिया गया उनकी भलाई के लिए, वो कहीं ना कहीं अब उनमें नजर आ रहा है। वापस चलते हैं, हमारे साथ हमारे जो मेहमान जुड़े हुए हैं आज संजय जी। संजय जी, अभी हम आवाम का जिक्र ही कर रहे थे और जमहूरियत को जब हम काबिज करने की बात करते हैं, वो जब हमारा मुस्तकबिल लिखती है तो उसमें सबसे अहम यह है कि लोकतंत्र आपको मुस्कान के साथ साथ आपके वो तमाम राइट्स, आपको आपके अधिकारों से वंचित नहीं करता। और ये जो आवाम का जश्न हम अभी देख रहे हैं वो इस फैसले से खुश है।
देखिए, ये खुश होने वाली बात ही है, क्योंकि कई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस, इम्पेडिमेंट्स थे, जैसे कि कोई महिला अगर राज्य से बाहर शादी करती है तो उसके कई अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। इस तरीके के कई ऐसे पहलू थे जो पहले, जैसे ST/SC भाइयों के लिए कई पहलू थे जिनका कि यहाँ पे 370 की वजह से और 35A की वजह से काफी दखल होती थी और उससे डिस्टर्ब होते थे वो राइट्स। उन सब राइट्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जैसा कि भारत के अन्य प्रदेशों में, अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पे जो राइट्स हैं, जो हकूक है, इंसानी हकूक जिन्हें कहते हैं ह्यूमन राइट्स, वो सारे हकूक भी अब जम्मू कश्मीर के जनता को पुरजोर तरीके से मिलेंगे। पूरी उतनी ही व्यवस्था मिलेगी जो व्यवस्था पूरे भारत में है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है और ये मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता के जो मुंह पे आज खुशी हम देख रहे हैं, जो वहां के व्यक्तियों के जो प्रसन्न है, उसकी प्रसन्नता। हम वहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं ना संजय जी, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जम्मू से, शब्बीर डार जुड़े हुए हैं। शब्बीर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल यही है कि हमने अभी वहाँ पर जो आवाम वहाँ मौजूद है उसके जश्न की तस्वीरें दिखाई, वो खुशी दिखाई, आप वहाँ पर मौजूद है, किस तरह का माहौल है, खासतौर पर जब ये फैसला पढ़ा गया CJI द्वारा कि जो अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, ये फैसला वैध है और इस पर यह कहना कि ये असंवैधानिक था, ये बहस की कोई प्रासंगिकता नहीं है, वहां की आवाम इस वक्त क्या महसूस करती हुई नजर आ रही है आपको? शब्बीर, कितनी देर और होगा? और हमने देखा है कि 2019 के बाद ही लोगों ने इस बात को स्वीकार किया था कि जो आर्टिकल 370 है वो एक हिस्ट्री है और इसके हटने से यहाँ पे जो है तामीर तारीख के डेवलपमेंट का जो दौर शुरू हुआ है और जो खासतौर केंद्र सरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरबराही में जो सरकार ने यहाँ पे एक डेवलपमेंट का दौर शुरू किया है, इससे यहाँ के जो आम निवासी आम लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं। हमने देखे हैं कि इतने सालों में जो है बैक टू विलेज कार्यक्रम चलाए गए हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ पे हर जिले हर गाँव में गए हैं और स्वयं उन्होंने खुद जो है डेवलपमेंट प्रोसेस को यहाँ पे और मॉनिटर किया है और उसको जोर दिया है कि यहाँ पे जो ग्रासरूट लेवल पे जो डेवलपमेंट का है वो लोगों को जो सहूलियात हैं उनको उनके यहाँ जो समस्या हैं बिजली पानी का और डेवलपमेंट का और उस चीज़ से लोग काफ़ी खुश हैं और काफ़ी सारे लोग ये भी मानते थे कि शायद यहाँ के जो डेवलपमेंट प्रोसेस में आर्टिकल 370 एक ऑब्स्टेकल बना था। अब इसके हटने से जो है लोग खुश हैं और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केंद्र सरकार के फैसले पे मोहर लगाई है तो वैसी बात है काफ़ी सारे लोग इसको एक यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं। ये भी बताना जरूर चाहूँगा कि तो रविंद्र रैना भी हमारे साथ जुड़े। शब्बीर, आपका वापस आएंगे। रविंद्र रैना साहब जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है आपका रविंद्र जी DD न्यूज़ पर। जिस तरह का फैसला जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 370 को हटाना। चलिए रविंद्र रैना के साथ वापस हम संपर्क करेंगे, वापस उनसे बात करेंगे जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे। शब्बीर हमारे साथ मौजूद। शब्बीर, जिस तरह से ये फैसले में ये भी कहा गया कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल किया जाए जम्मू कश्मीर का, क्योंकि आप खुद वहाँ श्रीनगर के वासी हैं, राज्य का दर्जा बहाल होने का ये जो फैसला लिया गया, वहाँ जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएंगे, इस पर आवाम का क्या कहना है? शब्बीर, मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या? चलिए, शब्बीर को आवाज नहीं मिल रही, लेकिन जनता की आवाज हम तक पहुंच रही है। आप देखिए किस तरह से तमाम वाद्य यंत्र बजाकर भी अपनी खुशी जाहिर करना, जिस खुशी का जिक्र लगातार हम करें। विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां की आवाम की, जो ये विकास चाहती है, उसे राजनीति से परे हटकर विकास चाहिए, उसे नौकरी चाहिए, और ये इन 4 सालों में हमने होते हुए देखा है। जिस नेशनल इंटीग्रेशन का हम जिक्र कर रहे थे, तमाम जो सीनियर वकील हमारे साथ जुड़े थे, ये तस्वीर उसी बात की तस्दीक करती है। विकास, बिल्कुल आंचल, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कही कि 70 साल से ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन की जो प्रक्रिया है वो चालू है, वो चल रही है।
पहले धीमी थी, लेकिन 2019 में आप ये कह सकते हैं कि ये अपने अंजाम तक पहुंच गई और पूरी तरह से जो भी विशेष प्रावधान थे जम्मू कश्मीर को लेकर वो ख़त्म हो गए और जम्मू कश्मीर के पे वही कानून लागू हैं जो बाकी देश पर लागू हैं। जम्मू कश्मीर की अपनी कोई संप्रभुता नहीं है देश के किसी भी अन्य राज्य की तरह, और जम्मू कश्मीर में वो सारे कानून लागू होंगे जो देश के किसी भी दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेश पर लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये सब बातें स्पष्ट कर दी हैं। कोर्ट के सामने कई पहलू रखे गए थे कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला ठीक था, क्या राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद जो आर्टिकल 367 में एक अमेंडमेंट लाया गया, संशोधन लाया गया, वो ठीक था। 370 के संबंध में जो राष्ट्रपति ने आदेश जो जारी किए थे 2 अगस्त 2019 में जारी किए थे, संविधान आदेश 272 और 273, क्या वो सही थे? ये बहुत सारी मसले सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए थे जिन पर कोर्ट ने विस्तार से फैसला दिया। 3 फैसले हैं आंचल यहाँ पर, लेकिन तीनों फैसले एक ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। इनमें जो आपसी सहमति है तीनों फैसलों में जजेस के बीच, जो रीजंस हैं वो कुछ अलग हैं तीनों जजमेंट में, लेकिन जो फाइंडिंग्स हैं वो सेम है कि आर्टिकल 370 जो है वो एक टेम्परेरी प्रोविजन था, स्थायी प्रावधान नहीं था। विशेष परिस्थितियों में अस्थायी प्रावधान को रखा गया था। उस वक्त की ज़रूरतों के हिसाब से जम्मू कश्मीर उस वक्त एक तरीके से कहें वॉर को झेल रहा था, एक जो पूरा पाकिस्तान की ओर से जो आक्रमण किया गया था वैसी परिस्थितियां थी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 370 को उस वक्त टेम्परेरी प्रोविजन कहा गया था। बिल्कुल, और इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि ये एक अस्थायी प्रावधान था, वहाँ की भंग हो गई। बिल्कुल, एक बार अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के केंद्र के फैसले को सही ठहराने पर स्थानीय लोगों ने इसकी सराहना की है। लोगों का कहना है कि रियासत में अब पूरी तरह शांति है, विकास भी तेजी से हो रहा है। आइए सुनते हैं पहले उसे। बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि कश्मीर में आज के दिन हालात ख़राब हैं, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं, ट्रैफिक बंद है, मोबाइल इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। ये सब ढकोसले हैं और एक गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल करके आ रहा हूँ। मैं तकरीबन 25-30 मिनट जैम में फंसा था बारामूला में, और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस कहीं पे नहीं है, कहीं पे भी मतलब सख्ती नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, या हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें उनकी तरफ से। हालात सामान्य है, नॉर्मल है। आर्टिकल 370 रिवोक के बाद यहाँ पे जो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई। तो आपको तो पता ही है कि आर्टिकल 370 से पहले तो यहाँ पे तो टूरिज्म का उतना फ्लो था नहीं। तो आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो टूरिज्म में भी बहुत बूस्ट हुआ। तो बहुत से टूरिस्ट भी यहाँ पे आए, डेवलपमेंट भी बहुत हुई, और जो बेरोजगारी है वो भी ख़त्म हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया हम बहुत खुश हैं उससे, क्योंकि आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई, स्टोन पेल्टिंग बंद हुई। यहाँ पे जो आज आम इंसान भी है वो भी आराम से बैठकर अपना वो जो है कारोबार करता है। तो इसलिए हम बहुत खुश हैं कि आर्टिकल 370 रिवोक हुआ। हम बहुत खुश हैं कि इससे जो है यहाँ पे जो है कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। और लगातार प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आ रही हैं। ये वहाँ के लोग हैं, वहाँ की आवाम है। अभी जो भाजपा अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जो उद्देश्य था, जो प्रक्रिया थी, उसे वैध ठहराया है उच्चतम न्यायालय ने, और साफ तौर पर वहाँ की जनता के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी का। विकास, जिस तरह से हम वहाँ के लोगों को अब सुन रहे हैं, उनका ये साफ तौर पर मानना है कि कई रिस्ट्रिक्शंस थे जब तक 370 वहाँ पर लगा हुआ था, ऐसी कई रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर थी। जैसे ही 370 को वहाँ से हटाया गया, चीज़ें खुली, यानी कि दायरा बढ़ा, विस्तारीकरण हुआ, जिसका फ़ायदा हम पर्यटन के लिहाज से, नौकरियों के लिहाज से वहाँ पर देखते हैं। बिल्कुल आंचल, आप ये देखें कि लोग आखिर इसकी प्रतिक्रिया आखिर ऐसी क्यों है, क्योंकि अगर आप 2019 के पहले की स्थिति देखें तो जो भी कानून संसद बनाती थी, चाहे वो राइट टू एजुकेशन का हो, चाहे वो मनरेगा का हो, चाहे वो पुरानी सरकारों के द्वारा लाए गए कानून हो, वो अपने आप जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। एक अलग कवायद शुरू करनी होती थी उसके लिए कि या तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा अपने यहाँ वैसा ही एक बिल लेकर के आए। अब उसकी लैंग्वेज सेम भी हो सकती है या उसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। जो बाकी देश में कानून लागू है वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है। इनमें से एक उदाहरण है रिजर्वेशन का मसला। आप देखें कि जम्मू कश्मीर में
शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी जो वहाँ पर है, जो बकरवाल कम्युनिटी है और भी कम्युनिटीज़ हैं, उनको आज तक रिजर्वेशन नहीं मिला, क्योंकि वहाँ की विधानसभा ने कभी आरक्षण के लिए इस तरह के विधेयक को रखा ही नहीं, उसको किसी तरह से अपनाया ही नहीं गया। हाल ही में इस तरह के कानून जो बाकी देश पर लागू हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए लाए गए हैं, खासतौर से रिजर्वेशन से जुड़े हुए, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लिए हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए हो। इसके अलावा भी एक जो आप कानून देखें उसमें जो विस्थापित कश्मीरी हैं उनको उचित नुमाइंदगी मिले, उसके लिए कानून आया हो। पीओके से जो लोग डिस्प्लेस हुए थे उसको विधानसभा में भेजा जाए, मनोनीत किया जाए, इस तरह के कानून लाए गए हैं जो कि पहले संभव नहीं थे। यही वजह है आप अगर जो लोग वहाँ पर इसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो बेनिफिट्स अब तक उनको नहीं मिलते थे, ये एक राजनीतिक कारण से आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर की विधानसभा अपने आप में एक खुद को संप्रभु मानती थी। ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी कि कोई सोवरेनिटी नहीं है, कोई सोवरेनिटी नहीं है जम्मू कश्मीर के पास। ना उनका पुराना संविधान इसकी बात कहता है, ना भारतीय संविधान इसकी बात कहता है, और जो भी तथ्य हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, विकास, एक मिनट को रोकना चाहूंगी। जिस ट्वीट का हम जिक्र कर रहे थे अभी कि जगत प्रकाश नड्डा जो कि भाजपा अध्यक्ष हैं, उनका ट्वीट आपको एक बार बता दें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं जो माननीय कोर्ट द्वारा फैसला लिया गया है। उनका कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 के विषय में दिए गए फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 370 और 35A को हटाने के लिए दिए गए निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया। माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा से जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया। इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो तमाम जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो लगातार हम आपसे साझा कर रहे हैं। इससे पहले आपने राजीव प्रताप रूडी की प्रतिक्रिया सुनी, वहाँ की आवाम को आपने देखा कि इस फैसले से वो खुश हैं और इस फैसले का वो स्वागत करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का जो ये फैसला था वो संवैधानिक दायरे में लिया गया था। और ये केंद्र सरकार नहीं कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के CJI द्वारा जो फैसला पढ़ा गया उस फैसले में ये बात सामने निकल कर आई है। हमारे साथ विकास सारथी, एक लगातार जो नैरेटिव बनाया गया था जब 370 को हटाया गया, लगातार ये नैरेटिव चलाया गया कि भाई ये जो अनुच्छेद हटाया गया है ये लोगों की जो विश थी या फिर उनकी इच्छाओं के खिलाफ लाया गया। ये याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में बात कही भी है। लेकिन जिस विकास की बात हम कर रहे हैं, जिस सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, जिन तमाम उन असीम संभावनाओं के आकाश की हम बात करते हैं, उसे तो कोर्ट ने सिरे से खारिज किया। उसने कहा भाई वहां पर विकास हुआ है और ये इस बात की तस्दीक करता है। बिल्कुल, देखिए आम लोगों की राय अलग है और जो ये बातें उठाई गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से, इनमें से ज़्यादातर लोग जम्मू कश्मीर की राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़े थे, चाहे वो PDP के लोग हों, PDP के नेता हों या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हों। इन लोगों ने याचिकाएं यहाँ पे दाखिल की थी। हमने कुछ जो एक्टिविस्ट थे जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए, वो जो याचिकाकर्ता आए थे, उनमें से हमने देखा कि 2 लोगों ने सुनवाई से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था और ये कहा था कि जिस तरह की उन्हें आशंका थी, अंदेशा था जम्मू कश्मीर में एब्रोगेशन के बाद आर्टिकल 370 के, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा वहाँ पर पहले से स्थिति बेहतर हुई है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो बिज़नेस की बात हो, इस हर चीज़ में सुधार हुआ है, चाहे वो पर्यटकों के आने की बात हो। तो ये जो दलीलें हैं, आप कहें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज उठा करके याचिकाकर्ता आए थे, उसमें से अधिकतर लोग ऐसे थे जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़े हैं। उनके जो इश्यूज थे वो यही थे कि जम्मू कश्मीर में 370 का जो प्रावधान है वो स्थायी प्रावधान है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर की विधानसभा से बगैर सहमति के संसद ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकती जो वहाँ के राज्य के स्वरूप में बदलाव करता हो। लेकिन देखें कि ये सारी चीज़ें एक तरीके से मिथक साबित हुई। ऑर्डिनेंस की जो लैंग्वेज थी उसने इन सारी रुकावटों को हटा दिया और ये जो ऑर्डिनेंस पहले लाया गया अगस्त 2019 में, जिसमें ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में 2 यूनियन टेरिटरी होंगी, अलग अलग कर दिया गया जम्मू कश्मीर लद्दाख को, और 370 के तहत जो शक्तियां थी, प्रावधान थे, उनको हटाया गया और वो सारी कानून जो लागू होते हैं देश के किसी भी बाकी हिस्से पर, वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे, ये व्यवस्था दी गई। उसके बाद से
लगातार वहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन थी, जो हालात हैं, उनमें बदलाव आया है। वो फैक्ट्स सुप्रीम कोर्ट में रखे भी गए, हालांकि कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई कि इन फैक्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज से क्या लेना देना है, लेकिन वो फैक्ट्स रिकॉर्ड के लिए सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में रखे कि किस तरह पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है, किस तरह से जो बंद पहले कॉल किए जाते थे वो उनमें कमी आई है, कर्फ्यू पहले लगते थे हर पत्थरबाजी के बाद, उनमें उन घटनाओं में कमी आई है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कम हुआ है, ये सारी बातें भी यहाँ पर रखी गई। आप बने रहेगा विकास हमारे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के संजय चड्ढा साहब जुड़े हैं। संजय जी, जब 370 जम्मू कश्मीर में था उस वक्त ये कहा जाता था कि संविधान के हाथ बंधे हुए हैं और देश और लोकतंत्र संविधान से चलता है, और आज के इस फैसले में जो बहुत अहम बात, कई अहम बातें कही गई, इसमें से एक अहम बात जो सीजे साहब ने कही वो ये कहा कि देश का संविधान पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पर लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भले ही ये शक्तियां राष्ट्रपति के पास थी लेकिन वहां पर भी राज्य की मंजूरी लेना जरूरी था। इसे आप कानूनी प्रारूप से, लोगों की भलाई के लिहाज से किस तरह से लेते हैं? देखिए, जहां तक प्रश्न है जो आपने सवाल किया कि क्या इंटीग्रेशन में क्या होता है और किस प्रकार से जो है एक राज्य की कंसेंट की जरूरत होती है, मैं बता रहा था पिछले बार जब हम लोग बात कर रहे थे, आर्टिकल 3 उसके लिए बनाया गया है। आर्टिकल 3 उस पर विस्तृत विवेचना होने की आवश्यकता है। ये भी आज सीजेआई ने अपने शब्दों में कहा था कि उस पर एक विस्तृत जजमेंट की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक आज के परिप्रेक्ष्य की बात है, आज सीजेआई ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन का काम, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटीग्रेशन का काम पिछले 70 सालों में चल रहा था, उसका ये कल्मिनेशन है, नंबर 1। नंबर 2, एक जो सबसे अहम बात है वो हमको नहीं भूलनी है कि पिछले 70 साल में सैकड़ों बार, मेरे शब्द को मार्क करिए, नोट करिए, सैकड़ों बार जो है गवर्नर ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रोक्लेमेशंस जारी किए, नोटिफिकेशंस जारी किए हैं। वो तमाम नोटिफिकेशन इसको कभी भी चैलेंज नहीं किया गया। जो इस चीज को बार बार इंगित करते हैं, बार बार दर्शाते हैं, बार बार एक ही पॉइंट पे लेके जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर, के सॉवरेनिटी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का अपना अंग नहीं था, सॉवरेनिटी भारत की ही थी और वो भारत का एक अभिन्न अंग था। और इवन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में भी इस चीज का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया कि हम भारत के सॉवरेनिटी के अंतर्गत आते हैं। देखिए, आपने जो अभी बात भी हो रही थी, हमारे पत्रकार बता रहे थे विकास, कि कैसे जो पिछले 4 साल में जो प्रोग्रेसेस हुई हैं वहां पे किस प्रकार से, और खासतौर से मैं अभी रिसेंट एग्जांपल G20 का भी देना चाहूंगा कि कैसे G20 में और टूरिज्म में जिस तरीके से जो प्रोग्रेस हुई है, जिस तरीके से वहां बिजनेस बढ़ने के चीजें आगे आ रही हैं, इंटरनेशनल लेवल से इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही हैं, वो सब एक ही चीज बताती हैं और उनका सबका उद्देश्य एक ही है, वहां के जो जनमानस है, वहां के जो लोग हैं, उनको प्रोग्रेसिव वे में लाना, उनकी तरक्की होना। तो ये किसी भी भारत के अंग की अगर तरक्की होती है तो वो हमेशा वेलकम स्टेप है। सो ये सारे एस्पेक्ट हैं। जहां तक हम लोगों का सबसे अहम बात है, जो सीजीआई ने और सब जजेस ने ये कहा कि ये जो आर्टिकल था 370, ये जो अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से अहम बात है। और जहां तक 370 सब क्लॉज 3 की बात है, जिसमें कहा था कि ओनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैन चेंज इट, तो उसके संदर्भ में भी बहुत ही सुंदरता के साथ हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये निर्धारित किया कि सारी पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को समरूपता के साथ जोड़ने की जो बात करी पिछले 70 साल में, उसका कल्बिनेशन है। तो इसलिए जो भी कार्य किया गया वो स्पष्ट रूप से बिल्कुल सही, लीगल और सारे कानूनी पैमानों के आधार पे किया गया जी। तो अब कानूनी हम पैमानों की और इस कानूनी आधार की बात करें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जल्द राज्य का दर्जा तो बहाल किया ही जाए, लेकिन वहां पर चुनावों को भी सुनिश्चित किया जाए। इसे आप किस लिहाज से देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ही अब इसके लिए तैयारियां करनी होगी, लेकिन ये कितना अहम है? क्योंकि अभी हम वहाँ की जनता को सुन रहे थे, वो खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसा हो और यही मुफीद है वहाँ की आवाम के लिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया
कि किस प्रकार से आंचल जी, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम विल ऑफ पीपल से गवर्न होते हैं, ना कि कोई किसी और चीज से। और विल ऑफ पीपल का जानना, विल ऑफ पीपल का को देखने के लिए ये बहुत अहम है कि पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा चयनित और चुनाव से निकाल के जीते हुए लोगों को वहां की राज्य को चलाने का मौका दिया जाए। ये एक आधारभूत सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत से भी जम्मू एंड कश्मीर वंचित क्यों रहे? वो नहीं रहना चाहिए। ये एक आधारभूत बात है और इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने न केवल इलेक्शन कमीशन को ये आदेश दिया, मैं इसको आदेश कह रहा हूं कि सितंबर 2024 तक किसी भी प्रकार से वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में चुनावों का आयोजन किया जाए और शांतिपूर्वक सफल चुनाव करवाने के बाद वहां के लोगों की मंशा के आधार पे एक सरकार का गठन हो और वो सरकार चलाए। पहली बात। दूसरी एक अहम बात जो कि आपने भी कही, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, तो बेंच ने ये भी कहा कि क्यों एक इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है, इस पे भी एक बल दे के बात कही कि उसको स्टेट का स्टेटस कैसे मिलना है, क्या होना है, उस पर भी कार्य होना चाहिए। जी, हमारे साथ विकास सारथी भी जुड़े हुए हैं, आपके पास वापस आऊंगी। चलिए, पहले हम दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले का स्वागत करते हुए जो ट्वीट लिखा है, एक बार उसको बता दें। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि टुडे सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इज हिस्टोरिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनली अपहोल्ड्स द डिसीजन टेकन बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 5 अगस्त 2019। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आर्टिकल 370 को हटाने का केंद्र सरकार द्वारा लिया गया था वो ऐतिहासिक है और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप है जो 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा लिया गया। इट इज रिसाउंडिंग डिक्लेरेशन ऑफ होप, प्रोग्रेस एंड यूनिटी फॉर आवर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। यानी कि साफ तौर पर जिस भाईचारे की बात हम करते हैं, जिस एकता की बात की जाती है, जिस विकास की बात की जाती है तमाम उन बहन भाइयों के लिए जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए हैं, ये फैसला उन्हें ध्यान में रखते हुए लिया गया था। द कोर्ट इन इट्स प्रोफाउंड विजडम हैज फोर्टिफाइड द वेरी एसेंस ऑफ द यूनिटी दैट वी एज इंडियंस होल्ड डियर एंड चेरिश अबव ऑल एल्स। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर हमारे इस विवेक की सराहना की है कि किस तरह से जो सभी भारतीय हैं वो एक हैं और इसी एकता की भावना के साथ वो रहते हैं। आई वॉन्ट टू एश्योर द रेजिलिएंट पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दैट आवर कमिटमेंट टू फुलफिलिंग योर ड्रीम्स रिमेन्स अनवेवरिंग। यानी कि हम साफ तौर पर जो तमाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग हैं उनकी तरफ अपनी ये प्रतिबद्धता दर्शाते हैं कि हम उनकी आकांक्षाओं, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खड़े हैं। वी आर डिटरमाइंड टू इंश्योर दैट द फ्रूट्स ऑफ प्रोग्रेस नॉट ओनली रीच यू बट ऑल्सो एक्सटेंड देयर बेनिफिट्स टू द मोस्ट वनरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड। यानी कि हम इस बात की प्रतिबद्धता जताते हैं, ये साफ तौर पर कहते हैं कि जो योजनाएं हैं जन कल्याण से जुड़ी हुई, लोक हित से जुड़ी हुई, उनका लाभ जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उस तक पहुंचेगा। और साफ तौर पर इसके आगे प्रधानमंत्री लिखते हैं, खास तौर पर उनके लिए जिन्होंने सफर किया, जिन्होंने आर्टिकल 370 जब था तो उसकी वजह से कई जगह पर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं, द वर्डिक्ट टुडे इज नॉट जस्ट अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक कानूनी जजमेंट ना होकर बल्कि इट्स अ बेकन ऑफ होप। ये एक आशावादी किरण है, अ प्रॉमिस ऑफ ब्राइटर फ्यूचर। एक ऐसा हम मान सकते हैं वादा है जो बेहतरीन भविष्य की कल्पना करता है एंड टेस्टमेंट टू आवर कलेक्टिव रिजॉल्व टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर यूनाइटेड इंडिया। यानी कि ये हम सब पर जिम्मेदारी है कि हम एक सशक्त और बेहतरीन और बेहतर भारत का निर्माण करें। हैशटैग नया जम्मू और कश्मीर। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने जो ये पूरा साझा किया है अपना वक्तव्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ये कई बड़ी बातें कहता है। ये साफ तौर पर कहता है कि हम नए जम्मू कश्मीर के साथ हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री ने आगे ये भी लिखा कि पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ हैशटैग आर्टिकल 370 यानी 370 को जब हटाया गया, जम्मू कश्मीर हैज विटनेस्ड अ रिमार्केबल एरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेड बाय रिफॉर्म्स। ऐतिहासिक बदलाव
की तस्वीर पेश करता है ये नया जम्मू कश्मीर, जिसमें कई सुधार किए गए जो ड्रिवन बाय द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द पीपल, यानी वो लोगों द्वारा किए गए, लोगों की इच्छा शक्ति और सरकार का स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। हेड ओवर टू #न्यू जम्मू कश्मीर इन द योर वॉइस सेक्शन इन द वॉलंटियर मॉड्यूल ऑफ नमो ऐप टू नो मोर। साफ तौर पर आप नमो ऐप पर जाइए, वहाँ पर जो योर वॉइस सेक्शन है, वहाँ पर जो वॉलंटियर मॉड्यूल है, उसमें आप जाएंगे तो आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं इस नए जम्मू कश्मीर के बारे में। ये वो नया जम्मू कश्मीर जो हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा, हमारा ही हिस्सा है, हमारे उस अखंड भारत की तस्वीर है और ये सबसे अहम है। और ये कई लगातार जो प्रतिक्रिया हैं वो प्रधानमंत्री हैं वो साझा करते जा रहे हैं। इसे भी एक बार पढ़ देते हैं कि दिस डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेकेड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी जो 21वीं सदी है ना, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे अहम है। नाउ इज़ द टाइम टू लीव ओल्ड चैलेंजेस बिहाइंड एंड टेक। ये 20 अक्टूबर 2022 का 30 अक्टूबर 2022 का ट्वीट है, ये हम आपसे साझा कर रहे हैं। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी जो है वो बहुत अहम दशक है जब हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं। ये वो वक्त है जब हमें जो पुराने चैलेंजेस हैं उन्हें छोड़कर इन नई संभावनाओं का हम कह सकते हैं फुल एडवांटेज, फुल फ़ायदा लेते हुए आगे बढ़ना है। हम खुश हैं कि वहाँ का जो जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो आगे आ रहा है, वो आगे आ रहा है इस राज्य की बेहतरी के लिए, वो आगे आ रहा है इस राज्य को सशक्त बनाने के लिए, वो आगे आ रहा है इस राज्य के विकास के लिए। और इट इज़ आवर यूथ हु विल राइट द न्यू सागा ऑफ डेवलपमेंट इन जम्मू कश्मीर। 30 अक्टूबर 2022 का ये ट्वीट है। देखिए, इस फैसले के आने से पहले 1 साल पहले का ये ट्वीट है। अब आप देखिए कैसे जब 370 को हटाया गया उसमें और अब में कितना फ़र्क है। 10-fold रिडक्शन इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी जब हम इंसिडेंट्स की बात करते हैं 2010 में तो वो 480 से भी ज़्यादा थे, और अगर बात की जाए 2023 की तो ये सिमट कर रह गए 48। उसके बाद अगर हम सीज फायर वायलेशंस की बात करते हैं तो 2010 में ये इसका आंकड़ा 70 के पास था, 2023 में ये सिमट कर 2 हो गया। आप समझिए, जिस 370 की वैधता पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिस 370 को ये कहा जा रहा था कि भाई लोगों की इच्छाओं के अनुरूप वो था ही नहीं, अगर वो नहीं था तो आप देखिए कि किस तरह से इन तमाम जो मामले हैं, चाहे हम क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं सीज फायर वायलेशन की, देखिए कमी किस लिहाज से आई है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और जो फंडिंग थी पाकिस्तान की 32 केसेस जो रजिस्टर्ड हुए थे, आप देखिए उसमें भी कमी आई है। और ये पूरा जो टेरराइज्ड इकोसिस्टम था इसमें कमी आई 370 को हटाने के बाद। अब कैसे जो तमाम वहाँ के गांव थे उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा गया। अगर बात की जाए पहले की, यानी जब 370 था तब 158 किलोमीटर पर साल पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रोड बनाए जाते थे। अब आप देखिए वो 8068 किलोमीटर पर ईयर, यानी इसका आप दायरा देखिए कैसे विस्तारीकरण बढ़ता है। इसी से खुशहाली आती है। अगर आपका गांव आप जो है वो शहर की सड़क से जुड़ा है, कनेक्टिविटी सशक्त है, तो आप समझिए कि देश की राज्य में आर्थिक प्रगति आती है। किस तरह से लोगों के आशियाने का, लोगों के घरौंदे के सपनों को पंख मिला। देखिए 24,000 जो घर थे आज़ादी जब हमें मिली थी वो जम्मू कश्मीर में थे, लेकिन अब 2.25 लाख घर हर 5 साल में वहाँ बनाए जाते हैं, यानी हर उस आम जन के सर पर छत जिसका वो सपना देखता है, इसे पूरा किया गया 370 को हटाने के बाद। अब हर घर जल, कैसे माताओं बहनों के घर तक जल पहुंचाया गया। 7.8 लाख के आसपास घर थे जब तक 370 नहीं हटाया गया था जिनके घरों में पानी था, लेकिन सीधा इसे हम कह सकते हैं डबल के आसपास किया गया। 13 लाख जो घर थे उनके घर तक पानी पहुंचाया गया। पेंशन बेनिफिशरीज, वो वृद्धजन जिनकी आस होती है उनकी पेंशन्स की, सिर्फ 6 लाख पेंशन बेनिफिशरीज थे जिनका दायरा बढ़कर 10 लाख किया गया। ये क्यों हुआ? ये हुआ जब 370 को हटाया गया। जिस
समस्या से ग्रसित रहा जम्मू कश्मीर, जिसे हम हमेशा कहते हैं कि कश्मीर सबसे बड़ा स्वर्ग है, लेकिन वो ग्रसित रहा इन आतंकवादी घटनाओं से। 1994 से 2014 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 47,381 एवरेज हम मान सकते हैं कि 2000 से ऊपर आतंकी घटनाएं वहां अंजाम होती थी। लेकिन 2014 के बाद से ये 240, आप देखिए हजारों की संख्या से सीधा हम 100 के नंबर्स में आ गए। 72% हम मानते हैं कि रिडक्शन हुआ है जो तमाम जो सिविलियन कैजुअलिटीज होती थी आतंकी घटनाओं की वजह से, क्योंकि आतंकियों के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ढाल वहाँ का सिविलियन होता था, आम आदमी, उसे ढाल बनाया और अपनी घटना को अंजाम दिया, उसमें कमी आई। आप देखिए कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सनल यानी वो सीमा पर चौकसी करते हुए माँ भारती के लाल शूरवीर अदम्य साहस का शौर्य का परिचय देते हुए उनका जाना भी कई बार कई सरकारों को खटकता नहीं था। लेकिन आप देखिए 58% से ज़्यादा इसमें भी कमी आई। जिस जम्मू कश्मीर की सुरक्षा करने के लिए वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी थे वो तैनात रहते थे, और ये सब हुआ जब हम एक स्वच्छ, साफ, सशक्त, विकास से परिपूर्ण नए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। और ये जिस 370 को हटाने की वैधता पर तमाम आज याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज की, साफ तौर पर कहा कि इसकी वैधता पर सवाल उठाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और जो लगातार ये कहा गया कि ये जो फैसला लिया गया था लोगों की इच्छाओं के खिलाफ था, ये जो हम आपको आंकड़े बता रहे हैं, ये सच जो हम आपको दिखा रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करता है कि वहाँ के लोगों के भलाई में ये फैसला लिया गया था। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट्स में कहा है। आइए अब गृह मंत्री अमित शाह ने जो सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है वो भी आपसे साझा करें। साफ तौर पर उन्होंने कहा, आई वेलकम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज वर्डिक्ट अप होल्डिंग द डिसीजन टू एबॉलिश #आर्टिकल 370, यानी कि जो फैसला लिया गया था जिसकी लगातार हर जगह प्रशंसा हुई थी, लेकिन भर्त्सना करने वाले भी कहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी सुप्रीम मोहर लगाई है और मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। ऑन द 5th August of 2099, प्रधानमंत्री Narendra Modi ji took a visionary decision to abrogate #आर्टिकल 370, यानी 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने आर्टिकल धारा 370 को हटाने का जो फैसला लिया था, ये एक दूरदर्शी कदम था। और साफ तौर पर उन्होंने लिखा कि सिंस देन पीस एंड नॉर्मैलिटी हैव रिटर्न टू JNK, इसीलिए वहाँ पर स्थायित्वता और साथ ही साथ जो शांति प्रक्रिया है उसमें तेजी वो वापस लौटी है पटरी पर। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैव ब्रॉट न्यू मीनिंग टू ह्यूमन लाइफ इन द वैली वंस टॉर्न बाय वायलेंस। विकास और साथ ही साथ किस तरह से वहाँ पर ग्रोथ ने एक नया आयाम, यानी कि इन दोनों शब्दों के नए मतलब गढ़े गए जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जो एक वक्त पर कहीं ना कहीं विनाशकारी आतंक से पीड़ित था। प्रॉस्पेरिटी इन द टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ रेज द इनकम लेवल, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि वहाँ पर जो पर्यटन का क्षेत्र है, जो वहाँ पर कृषि क्षेत्र है, उसने लोगों की जो आय है, आय का जो लेवल है, जो स्तर है, उसमें बढ़ोतरी की है, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर लद्दाख की। Today, the Supreme Court's verdict has proved the decision to abrogate #आर्टिकल 370 was completely constitutional, यानी कि जो धारा 370 हटाई गई थी वो संवैधानिक प्रारूप के अनुरूप थी। लगातार हम जो तमाम हमारे साथ अधिवक्ता जुड़े, हमारे साथ संवाददाता जुड़े, हमारे साथ हमारे जो आवाम जुड़ी, उसने भी यही कहा, यानी कि जो तमाम प्रतिक्रियाएं हम जो आपसे साझा की वो भी यही कह रही थी कि भाई ये जो हुआ है वो संवैधानिक प्रतिक्रिया के अनुरूप ये फैसला लिया गया। हमारे साथ विकास सारथी लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। विकास, हमने प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया को भी यहाँ पर साझा किया जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। हमने गृह मंत्री की प्रतिक्रिया को भी साझा किया। साफ तौर पर जो अहम बातें दोनों ही ट्वीट्स में सामने निकल कर आई कि जो भी फैसला लिया गया था 370 को हटाने का वो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप पहला, और जिस प्रॉस्पेरिटी, जिस पीस, जिस नॉर्मैलिटी की हम बात करते हैं उसे वापस लाने के लिए 370 हटाना बेहद ज़रूरी था। बिल्कुल आंचल, अगर 2019 से कुछ वक्त पहले अगर आपने किसी से भी पूछा होता कि आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता है तो हर किसी की यही राय होती थी कि ये बहुत ही जटिल मसला है, इसमें बहुत सारे संवैधानिक प्रावधानों को बदलना पड़ेगा और ये संभव नहीं है बिना जम्मू कश्मीर विधानसभा की अनुमति के या सहमति के। लेकिन अगर आप इस जो
कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है या जिस प्रेसिडेंट की तरफ से ऑर्डिनेंस जो आया, अगर आप उसकी भाषा को देखें तो ये बहुत ही जटिल मसला था, जिसे लंबे आप कह सकते हैं कि विचार के बाद जो लीगल माइंड्स थे उनसे चर्चा के बाद ये इस ज़रिए से इसको हटाया गया कि आज ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जुडिशियल स्क्रूटनी के बाद भी खड़ा है पूरी तरह वैसे ही जैसे 2019 को था। पूरी तरह सही बताया है सुप्रीम कोर्ट ने इसे, और पांचों जज एक राय हैं कि इसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, चाहे वो जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में यूनियन टेरिटरी में विभाजित करने की बात हो या 370 को ख़त्म करने की बात हो, सब चीज़ें संवैधानिक प्रावधानों की कसौटी पर खरी उतरती हैं। तो एक बहुत बड़ा एक इस पे सवाल रहता था हमेशा, क्या 370 हटेगा या नहीं हटेगा, लेकिन 2019 के इन दोनों फैसलों ने जम्मू कश्मीर की स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। अभी जैसे आप प्रधानमंत्री के ट्वीट में जो आंकड़े बताए गए थे उसकी बात कर रही थी, तो ये आंकड़े क्योंकि वो आंकड़े थोड़े पुराने थे जो सुप्रीम कोर्ट में रखे गए, लेकिन बहुत भारी गिरावट देखी गई थी। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था, जो पत्थरबाजी की घटना थी, जो पहले हमने देखा था कि कॉल दिए जाते थे कि पूरे राज्य को बंद रखना है, कोई कामकाज नहीं होगा, इन सब चीज़ों में कहीं कहीं 90% की कमी आई है। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉमन वहाँ का आदमी है वो पूरी तरह इस जो आपने अभी साझा किया है विकास को काबू में लाया गया। बिल्कुल जो आपने आंकड़े साझा किए उस पर एक बार फिर से आऊंगी, लेकिन एक बार प्रधानमंत्री ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है वो बता दें कि जो फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया गया वो बिल्कुल सही था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, और कोर्ट ने जो 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से सही ठहराया। लगातार हम इस बात को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं, और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहनों के लिए आशा, प्रगति और एकता के लिहाज से एक शानदार घोषणा है। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। प्रगति का लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे। ये हिंदी संस्करण है जो इस तरह का ट्वीट प्रधानमंत्री ने किया है उसका। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, ये आशा की एक किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत और एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। उज्जवल भविष्य का वादा, मजबूत और एकजुट समाज के उस परिकल्पना को परिलक्षित करता हुआ ये फैसला साफ तौर पर विकास, क्योंकि समय हमारे पास कम है, आखिरी सवाल यही कि जिस सामाजिक समरसता की हम बात कर रहे हैं और वो आर्थिक प्रगति समावेशिता के बिना पूरी नहीं, और इसीलिए जो नया जम्मू कश्मीर है उसकी जनता की आकांक्षाओं को, उसकी इच्छाओं को और उसके सपनों को पूरा करने वाला ये आज का फैसला। बिल्कुल आंचल, क्योंकि जो लोगों की अपेक्षाएं थी या लोगों की ज़रूरत थी उनमें सबसे बड़ी रुकावट 2 बातें थी। पहला, वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स के चलते ऐसा काम नहीं हो पाते थे। दूसरा, क्योंकि संसद के कानून वहाँ पर लागू नहीं होते थे अपने आप, तो भ्रष्टाचार से जुड़े बहुत सारे मामलों पर जांच हो, इस तरह के कानून बनाने की बात हो, ये सारी चीज़ें भी इससे प्रभावित होती थी। और आप देखें जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा अगर कोई रुकावट थी वहाँ के विकास में और इस तरह की आतंकी घटनाओं के बढ़ने में, तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस पर काबू पाने में मदद मिलेगी, जो एंटी करप्शन लॉज हैं वो लागू होंगे, और एक जो प्रोटेक्शन मिला हुआ था वहाँ की, वहाँ पे चाहे जो सरकारी मशीनरी थी वो उसको हो या वहाँ के राजनेताओं को हो जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो अब खत्म हो गया 2019 में, जब सारे कानून पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पर भी उसी तरह लागू होंगे, उसी सख्ती से लागू होंगे जैसे बाकी देश में होते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, बहुत ही सरल भाषा में हमें इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझाने के लिए। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे तमाम जो सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता जुड़े थे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये जो फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसमें उन्होंने 370 को हटाने के इस फैसले को वैध ठहराया, ये अब वहाँ की आवाम के लिए फैसला है। ये वो कश्मीर है जो विकास चाहता है, शांति चाहता है, स्थिरता चाहता है, और वहाँ पर लोगों को ये दिया जा रहा है, और ये प्रतिबद्धता दर्शाई जा रही है कि साफ तौर पर ये उनकी आकांक्षाओं का, उनकी आशाओं का और उनकी प्रेरणा का नया जम्मू कश्मीर है। तो इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं हमारा खास शो मिड डे प्राइम मेरे सहयोगी असीम मिश्रा के साथ। नमस्कार।